Today we are doing revision of chapter polymers. I'll be explaining each and every concept of polymers once again. Start में we did what are polymers. Polymers क्या होते हैं? Just a revision. Poly means many and mer means mass. Polymers are compounds of large molecular mass and are formed by the combination of smaller molecules. Like this, we get a polymer, colon, heat, polymerization लिख लो shortcut में, and the smaller molecules which combine together and form this polymer, they are known as monomers. And this is polymer having large molecular mass. पहला question, what are polymers? फिर हमने second question मैंने बताया था, what are the types of polymers? Types of polymers, there are two types. One is homopolymers, another is copolymers. Of homopolymers, those polymers which are formed of same type of monomers. जैसे ऊपर example थी, it's a homopolymer formed of similar monomer units, and second is copolymer which is formed of different monomer units. जैसे हमने अभी condensation polymer में कराया था, nylon 66, it is formed of hexamethylene diamine and adipic acid. Both are different molecules. So polymers and their types: homopolymers formed of same monomer units, copolymers formed of different polymer units, monomer units. Then all polymers are macromolecules. Yeah, this is true. All polymers macro होते हैं, बड़े होते हैं, large molecular mass वाले होते हैं. But all macromolecules cannot be polymers. सारे macromolecules polymers नहीं हो सकते हैं, because there are molecules which are not formed of monomers, but still they are macromolecules. उनका molecular mass higher है, जैसे मैंने hemoglobin कहा था, chlorophyll कहा था. They are macromolecules, but not the polymers, because they are not formed of monomers. Nylon 66 is a polymer as well as macromolecule, because it has higher molecular mass, therefore it is a macromolecule. It's a polymer because it's formed of smaller monomer units, right? ये next question था. All polymers are macromolecules, but all macromolecules cannot be polymers. Next हमने किया था classification of polymers, and first classification हमने बताई थी. Classification of polymers में first classification जो मैंने कराई थी, it was simple on the basis of origin, source of origin. सोर्स क्या है इस पॉलीमर का, उसके बेस पर पॉलीमर्स को हमने कहा था थ्री टाइप्स. पहला टाइप हमने कहा था नेचुरल पॉलीमर्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स से जो पॉलीमर्स निकलते हैं, जैसे नेचुरल रबर, जैसे कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट, जैसे सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ्स, जैसे स्टार्च फ्रॉम प्लांट्स, दे आर नेचुरल पॉलीमर्स. सेकंड मैंने कहा था सिंथेटिक पॉलीमर्स, those polymers which are prepared in the laboratory by chemical reactions. They are synthetic polymers like nylon 66, polypropylene, polystyrene, PVC, terylene, glaptal. अब हमें पता है glaptal है, bakelite, etc. all are synthetic polymers. And third मैंने कहा था there is one more which is known as semi-synthetic polymers. Semi-synthetic polymers ऐसे polymers होते हैं which have natural source of origin, which are obtained from either plants or animals, but after obtaining they are taken into laboratory and they are subjected to chemical treatment in the laboratory for improving their properties. Suppose vulcanized rubber is a semi-synthetic polymer, because vulcanized rubber is basically obtained from natural rubber trees, but afterwards it is
subjected to chemical treatment by reaction with sulfur in the laboratory. That is the vulcanization of rubber. This was first classification of polymers, source of origin, pehla. And second, on the base of structure. Structure के base पर polymers are of three types. First कहा था मैंने linear chain polymers. In these polymers, monomers are combined in such a way so as to form straight chains. Like this, the straight chain, दूसरी straight chain. These polymer chains, चूंकि linear है, they are closely packed with respect to each other. They are high density, high melting point, high tensile strength. Normally textile में use होते हैं, ropes बनाने के काम में आता है linear chain polymers. Nylon 66 आप लिख सकते हैं example, terylene extra. Second is branch chain polymers. ऐसे polymers in which monomers are arranged in such a way so as to form straight as the branch chains. Like this, ये एक branch है, यहाँ से branch, यहाँ से branch, यहाँ से branch. ये एक branch है, branch है, branch. So these branch chain polymers are not closely packed. Therefore they have less tensile strength, less density, and less melting and boiling points. Third one is cross-linked polymers. Cross-linked means monomer units are arranged in such a way so as to form cross-linkage between different polymer chains. If it is polymer chains, इनके बीच में cross-linkage है, covalent bonds है, like this. They are very hard, tough, three-dimensional network polymers having high melting and boiling point. Once set, they are set forever. Bakelite is an example of cross-linked polymers. This was second classification on the basis of structure. Now third classification on the basis of intermolecular forces. Intermolecular forces के base पर क्या है? Types, 4 types. Number 1, fibers. Fibers में क्या होता है? Intermolecular force are strong. Therefore strong इसलिए है because they are closely packed. That's why intermolecular force attraction between different polymer chains is very strong. So these have high tensile strength. जो वहाँ linear थे, यहाँ पर ये fibers हो गए. जो stronger intermolecular forces, right? Ropes है, टेक्सटाइल्स में इसका यूज हो जाता है, क्लॉथ एक्स्ट्रा के लिए. सेकंड इज इलास्टोमर्स. इलास्टोमर्स वहां का ब्रांच चेन हो गया बिकॉज यहाँ पर कम इसमें वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन टू पॉलीमर चेन्स. वीकेस्ट कब होगा? जब ब्रांच्ड होगा. ब्रांच वाला हो गया उस स्ट्रक्चर के बेस पे. इंटरमोलिकुलर फोर्स में हमने बताना है वीकेस्ट, पहले वाले में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स. इंटरमोलिकुलर फोर्स यहाँ पर वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स. These are stretchable. They can be stretched, but when the deforming force is removed, they regain their original position, जैसे rubber. Third मैंने कहा था thermoplastics. Thermoplastics में न ज्यादा stronger न ज्यादा weaker. इनके बीच में intermediate है इनमें. Neither stronger nor weaker, or we can say force of attraction is intermediate between fibers and elastomers. These polymers can be melted again and again. They can be remolded again and again into desirable shapes. Thermoplastics में PVC, polythene, polystyrene सारे के सारे आ जाते हैं. और last one is thermosetting plastics. Thermosetting plastics ऐसे plastics है जिनमें intermolecular force of attraction between different polymer chains जो है basically network polymers से covalent bonds present between different polymer chains here. 3-dimensional network polymers, once set, they are set forever. They cannot be remelted and remolded again and again. Example, bakelite have formaldehyde, melamine, resin, etc. This was third type of classification on the basis of intermolecular forces. And last type of classification is on the basis of mode of synthesis. हम कैसे बनाते हैं उसके बेस पर, कैसे ये पॉलीमर्स बनते हैं, तो उसके बेस पर 2 टाइप्स है. वन इज एडिशन पॉलीमर्स इन विच इन दिस पॉलीमर्स monomer units combine together to form polymer without the elimination of a byproduct. कोई byproduct नहीं निकलेगा. Without elimination of byproduct. This is very important.
कोई चीज निकलेगा नहीं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड, एलिमिनेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट, क्योंकि डबल बॉन्डेड होते हैं नॉर्मली, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं। मोनोमर जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। क्योंकि कुछ नहीं निकलता है, therefore molecular mass of polymer is equal to sum of the molecular mass of all the monomer units or integral multiple of a molecular mass of each monomer, right? तो इस टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमर्स को मैंने कहा था, इसको हम कहते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर्स, बिकॉज चेन ग्रोथ टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली। एडिशन पॉलीमर में सारे आएंगे, पीवीसी जिसमें पॉली वर्ड आता है आगे, दे आर नॉर्मली दे आर addition polymers, polyvinyl chloride, polystyrene, फ्लोरो polytetrafluoroethylene जिसको हम टेफ्लॉन बोलते हैं, पॉलीप्रोपालीन, पॉलीइथीन, ये सारे सारे एडिशन पॉलीमर्स। सेकंड बताया था मैंने कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन में एलिमिनेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट निकलता है, जैसे वाटर निकलता है, अमोनिया निकलता है, HCl निकल सकता है, HBr निकल सकता है। कंडेंसेशन पॉलीमर्स एंड दिस कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो मोनोमर्स होते हैं वो बाई फंक्शनल और पॉलीफंक्शनल होते हैं, राइट? दो साइड्स में उसमें फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, या बीच में भी दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी इसको हम कहते हैं, बिकॉज एवरी स्टेप इज द कंप्लीट स्टेप इन इटसेल्फ, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसके बाद मैंने कराया था इसी के साथ जो ये एडिशन पॉलीमर्स में मैंने कहा था फ्री रेडिकल जो एडिशन पॉलीमराइजेशन कैसे होती है। फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होती है नॉर्मली पेरोक्साइड में होती है, सनलाइट में हो सकती है, या पेरोक्साइड एंड हीट में भी हो सकता है। पेरोक्साइड मस्ट है। तो पेरोक्साइड जब ब्रेक होता है, ये पेरोक्साइड लिंकेज है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होके बीच में होमोलॉजिक फिशन होता है, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म, चेन इनिशिएशन स्टेप, फिर यही चेन इनिशिएट करता है, चेन के साथ लगता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस OR आ गया इसके साथ। कहीं से भी दिखा सकते हो, यहाँ दिखाओ, यहाँ इधर से दिखाओ, इससे कोई फर्क नहीं, OR इधर से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये OR इसके साथ बॉन्ड बनाता है, बनाएगा RO CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट। अब इसमें कंटिन्यूअस CH2 डबल बॉन्ड CH2 बहुत सारे n टाइम्स आ जाएंगे एंड वी विल गेट RO। ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 n टाइम्स बीच में आएंगे, एंड में CH2 डॉट आएगा। दिस वाज चेन initiation and chain propagation. At the end there is end of these different chains then combined together either by disproportionation or by coupling reactions and form the final product। वो आप खुद देखेंगे। So chain initiation, chain propagation and chain termination में ये free radical addition polymerization होती है। इसके बाद मैंने कराया था नेचुरल रबर। नेचुरल रबर जो है मैंने कहा था लैटेक्स ऑफ रबर ट्रीज से निकलता है, लैटेक्स ऑफ रबर ट्रीज। और इस नेचुरल रबर का दूसरा केमिकल नेम है पॉलीआइसोप्रीन। और इसका जो मोनोमर है जिससे बनता है उसको हम बोलते हैं 2-methyl-buta-1,3-diene। इट इज 2-methyl-buta-1,3-diene। और मैंने कहा जब इसको पॉलीमराइज कराएंगे हम क्या, ये तो प्लांट्स में हो जाता है, नेचुरल रबर है एन टाइम्स। तो क्या होता है, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड आएगा, जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड आएगा। देखो यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल आया, राइट, होल एन। और मैंने एक पॉइंट बताया था जो नेचुरल रबर है, ये याद रख लीजिए, इट इज सिस आइसोमर। इसमें जो अक्रॉस द डबल बॉन्ड सिमिलर ग्रुप्स है, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। But natural rubber जो undergoes aerial oxidation, it is sticky in nature, so it's not so tough, it is soft. So in order to improve its properties, we do vulcanization of rubber. Vulcanization of rubber was discovered for the first time by Charles Goodyear in 1839. उसने क्या कहा, उसने कहा जितने भी रबर के मॉलिक्यूल्स है, these are rubber molecules, when they are heated with sulfur, तो सल्फर लिंकेज बीच में आ जाते हैं, जिससे हार्ड बन जाता है, ड्यूरेबल बनता है, टफ बन जाता है, इलास्टिसिटी बढ़ती है, लाइक दिस। ड्यू टू द फॉर्म ऑफ सल्फर लिंकेज इट बिकम्स हार्ड, टफ।
जो है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर विद 2 to 3 or we can say 3 to 5% of natural rubber, sorry, sulfur is known as vulcanization of rubber, right? This vulcanization हम जब नॉर्मली जब ट्यूब में पंचर होता है तो हम वहां पर यही रबर, नेचुरल रबर और सल्फर उसमें डाला होता है, उसमें जब हीट ऊपर से वो डालते हैं हॉट ऑब्जेक्ट आयरन का, तो उसमें वल्कनाइजेशन होती है और हार्ड बन जाता है। उसके बाद मैंने मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताया था, और मॉलिक्यूलर मास जो कि डिफरेंट चेन्स, एक ही सपोज पॉलीइथीन में लेता हूँ, पॉलीथीन एक ये चेन है, दूसरी इतनी होगी, तीसरी इससे बड़ी होगी, फोर्थ छोटी होगी। तो सिंस डिफरेंट चेन्स जो होते हैं पॉलीमर चेन्स है, डिफरेंट लेंथ्स देयरफॉर या डिफरेंट मास, therefore their molecular mass is represented in terms of average molecular mass. So two types of molecular mass जो है represented in two ways. Number first, number average molecular mass and mass average molecular mass. और इसमें बड़ा important है जो weight average molecular mass by number average molecular mass जो है उसको कहते हैं PDI, मैंने कहा था poly and dispersed index, and PDI for natural polymers always 1 because in natural polymers weight average and number average molecular mass is same. फिर इसके बाद हम पूछे थे प्रिपरेशन एंड यूजेस, मैंने कहा था प्रॉपर्टीज नहीं है बिकॉज प्रॉपर्टीज सबकी सेम है। प्रिपरेशन एंड यूजेस में सबसे पहले मैंने एडिशन कराया था, और एडिशन पॉलीमर्स मैंने कहा था 4 टाइप्स में। एडिशन पॉलीमर्स जो है इनको हम पढ़ सकते हैं, इनको हम लर्न कर सकते हैं अंडर 4 हेडिंग्स, 1 2 3 और 4। फर्स्ट हेडिंग जो है डेट इज पॉलीअल्कीन्स, पॉलीअल्कीन्स इनमें अल्कीन। दूसरी हेडिंग जो है डेट इज पॉलीडाइन्स। तीसरी हेडिंग मैंने कहा था पॉलीएक्रिलेट्स, एंड फोर्थ हेडिंग है पॉलीहेलोअल्कीन्स, हेलोअल्कीन्स। ध्यान से देख लो, सिर्फ आपको याद रखना है मेन दैट इज मोनोमर, एंड प्रिपरेशन तो इजी है। पॉलीअल्कीन में हम एक या पॉलीइथीन, पॉलीइथीन जो होता है, इथीन इज द मोनोमर, और इसको 2 है, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। सिर्फ इसमें कंडीशंस डिफरेंट है, तो 2 टाइप्स, यूज सेम है ऑलमोस्ट, यूज में कोई फर्क नहीं है। पॉलीप्रोपिलीन, प्रोपिलीन इज द पॉलीप्रोपिलीन, प्रोपिलीन जो होता है अक्रॉस द डबल बॉन्ड मगर होता है, याद रखना है आपको। ये मीथेन मैंने ऊपर लगा के रख लिया। तो जब पॉलीमर बनेगा, ये जो बॉन्ड है बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, यहाँ डैश होल एन, यही हो गया पॉलीप्रोपिलीन। ऐसे बताया था मैंने पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन इज द, बिल्कुल इजी, स्टाइरीन इज द मोनोमर, और स्टाइरीन होता है बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, अक्रॉस दोस 2 कार्बन एटॉमिक चेन को बढ़ाना है, तो पॉलीस्टाइरीन का ये बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH2 था, इन्हीं के बीच में हमने चेन बढ़ाई, बाकी बेंजीन ऐसे लिखना है, इसको होल एन लिखना है, दिस पॉलीस्टाइरीन। This is polystyrene is used for making cabinets of televisions, refrigerators, etc. Polypropylene is used for making big containers for storing oils, etc. फिर पॉलीडाइन, जहां पर डबल बॉन्ड 2 बार है, इसमें हमने नियोप्रीन मेन किया था और ब्यूना एस किया था। नियोप्रीन में मैंने कहा था सिंथेटिक रबर होता है, अगर आपको याद होगा, नियोप्रीन और नॉर्मल रबर में सिर्फ फर्क ये है, यहाँ पर 2-chloro-buta-1,3-डाइन है, बाकी सेम वही है, 2-chloro-buta-1,3-डाइन। नेचुरल रबर में था 2-methyl-buta-1,3-डाइन, इसको क्लोरोप्रीन भी बोलते हैं, दैट इज वाई नियोप्रीन का दूसरा नाम है पॉलीक्लोरोप्रीन, इसको क्लोरोप्रीन भी बोल सकते हैं, 2-chloro-buta-1,3-डाइन क्लोरोप्रीन, और that is why neoprene is polychloroprene. This is used for making tires, this is used for making conveyor belts for coal miners, etc. फिर दूसरा बताया था मैंने ब्यूना एस, ब्यूना एस में क्या होता है, नाम से पता चलता है, Bu stands for buta-1,3-diene, this is buta-1,3-diene, S stands for styrene, this is styrene। इन दो को कंबाइन करा दो, बिल्कुल इजी है, अक्रॉस द डबल बॉन्ड वाले कार्बन, यहाँ अगर हम दिखाएंगे भी, यहाँ से एक बढ़ेगी चेन, यहाँ से भी बढ़ेगी चेन, यहाँ से बढ़ेगी, यहाँ से बढ़ेगी, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल बॉन्ड आ जाए, दैट इज ब्यूना एस। फिर इसके बाद हमने ये था
पॉलीडाइन। फिर पॉलीएक्रिलेट्स में मैंने कराया था PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोनोमर एक्रिलोनाइट्राइल है। एक्रिलोनाइट्राइल मींस CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। एक्रिलोनाइट्राइल CN चेन में नहीं आएगा, जब एक्रोस द डबल बॉन्ड चेन बढ़ जाएगी। तो अगर मैं इसको बनाऊं भी, इट विल बी लाइक दिस CH2 सिंगल बॉन्ड CH। बिल्कुल ये याद रखना है कैसे होगा होल एन। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल के इसको ऑर्लॉन भी बोलते हैं, इसको मैंने कहा था ऑर्लॉन भी एक्रिलॉन भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, यूज्ड फॉर मेकिंग डोर मैट्स, यूज्ड फॉर मेकिंग कारपेट्स एटसेट्रा। फिर दूसरा था PMMA और PEA, बिल्कुल इजी। इसका मिथाइल मिथ एक्रिलेट है। इसका मिथाइल मिथ एक्रिलेट का मतलब ये चीज, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप और यहाँ डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पर COOH, H की जगह CH3 है। दिस इज द मोनोमर। और जब चेन बनेगी, चेन दो ही कार्बन के बीच में बढ़ेगी, इन दो के बीच में बढ़ेगी, और ये दो और ये ऊपर नीचे रखेंगे। ये लाइट्स बनाने के काम आता है, जो गाड़ियों में लाइट्स होते हैं। देन PEA इज पॉलीइथाइल एक्रिलेट। सिंपल इथाइल एक्रिलेट होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, H की जगह यहाँ पर इथाइल। दिस इज पॉलीइथाइल एक्रिलेट। ये पार्ट ऊपर रहेगा, इन दो पार्ट्स के बीच में चेन बढ़ जाएगी। इसका भी यूज वही है, कारपेट्स बनाने के काम में आता, स्वेटर बनाने के काम आता। फिर इसके बाद मैंने पॉलीएक्रिलेट्स के बाद पॉलीहेलोअल्कीन्स। पॉलीहेलोअल्कीन्स में मैंने दो बताए थे। पॉलीहेलोअल्कीन्स जो है, पॉलीहेलोअल्कीन्स में दो हमने बताए हैं। एक बताया था मैंने PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, PTFE। तो इसमें CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये नॉन स्टिक किचनवेयर के लिए यूज होता है, मेन यूज का वही है। स्विच बोर्ड्स बना सकते हैं एक्स्ट्रा। PTFE के बदले फिर बताया था पॉली मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोइथिलीन। इसका यही है, CF, एक F की जगह CL आएगा, बाकी सेम है, कोई फर्क नहीं, ठीक है ना, यूज सेम है ऑलमोस्ट। और एक बताया था मैंने ब्यूना एन, वैसे ब्यूना एन उसमें हम करेंगे, नॉट हियर। ब्यूना एन है पॉलीएक्रिलेट्स का, लेकिन एक्रिलोनाइट्राइल इसमें है, ये उसका है। बताता हूँ यहाँ पर अगेन, ब्यूटा 1,3 डाइन है इसका, ये पॉलीएक्रिलेट का है। ब्यूटा 1,3 डाइन ये हो गया ये। और एक्रिलोनाइट्राइल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, तभी आएगा पॉलीएक्रिलेट्स में। तो ये CN चेन से बाहर रहेगा जब हम चेन बनाएंगे, बाकी में चेन बढ़ेगी, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, बाकी सब एंड में यहाँ पर डैश और यहाँ पर डैश लगेगा, CN ऊपर जाएगा। और पॉलीहेलोअल्कीन में एक और बताया था हमने, अगर आपको याद होगा, PVC, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CL। सो CL चेन में आएगा नहीं, ये ऐसे बनेगा, CH ऊपर नीचे रख सकते हो, होल एन। दिस इज PVC। सो ये हमने बताया था, PVC पाइप्स बनाने के काम में आ जाता है, PVC शूज बनाने के काम आता है, कर्टन्स बनाने के काम आता है, टेबल क्लॉथ्स बनाने के आता है, ये फ्लोर कवरिंग्स के बनाने के काम में यूज होता है। दिस इज ऑल अबाउट एडिशन पॉलीमर्स। फिर हमने कंडेंसेशन किया, तो कंडेंसेशन मैंने कहा था 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप इसमें मैंने कहा था पॉलीएमाइड्स ना पॉलीएस्टर्स, दूसरा पॉलीएमाइड्स है, तीसरा फॉर्मल्डिहाइड्स। अब ध्यान सुनो, पॉलीएस्टर में मैंने 2 कहा, 1 कहा टेरिलीन। टेरिलीन के 2 जो है मोनोमर से, एक है इथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरा है इथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरा है टेरिथैलिक एसिड। ये टेरिथैलिक एसिड, थैलिक एसिड मींस यहाँ पर बेंजीन रिंग और एंड में COH। तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ से H निकालना, यहाँ से OH निकालना, COO बीच में रहेगा तभी इसका पॉलीएस्टर नाम है। यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा और ये बनेगा ऐसे OCH2 CH2 OCO, OCO मतलब C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O।
ये चीज रिपीट होगा, यही है टेरिलीन। टेरिलीन हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। टेरिलीन को अगर कॉटन से ब्लेंड किया जाए तो टेरिकॉट बनता है, वूल से ब्लेंड करेंगे तो टेरी वूल बनता है, तो और सिल्क से करेंगे तो टेरी सिल्क बनता है। दूसरा ग्लेप्टिल, ग्लेप्टिल बिल्कुल ऐसे ही, बस सिर्फ फर्क इसमें है, इथिलीन ग्लाइकोलिन ऑर्थोथैलिक एसिड, तो बेंजीन रिंग नीचे की तरफ आएगा तो इसलिए क्रॉस लिंक बनता है, ग्लूज में लगता है, पेंट्स में मोस्टली लगता है। फिर हमने किया था पॉलीएमाइड्स के बाद, देखो बड़ा पॉलीएमाइड्स जो है पॉलीमर्स, इसमें मैंने कराया 2 नायलॉन 66 एंड नायलॉन 6। नायलॉन 66 में मैंने कहा हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड है, 6 कार्बन का एसिड दैट इज एडिपिक एसिड, और 6 ही कार्बन का एमाइन डायमाइन, इसको कहते हैं हेक्सामिथिलीन डायमाइन। जब पॉलीमराइज कराते हैं, अब जब पॉलीमराइज करें इसका H निकल, वाटर निकल जाता है, CONH आता है, CONH को ही बोलते हैं एमाइड लिंकेज। नायलॉन से हम ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश बनाते हैं, नायलॉन से हम क्लोथ्स बनाते हैं, अंडरगारमेंट्स बना सकते हैं, नायलॉन से रोप्स बनाए जा सकते हैं, सॉक्स बनाए जा सकते हैं, पैराशूट्स बनाए जा सकते हैं, ये नायलॉन 66 के यूज है। फिर कराया मैंने नायलॉन 6। नायलॉन 6 मैंने कहा था मेन है, कैप्रोलैक्टम से बनता है। अब कैप्रोलैक्टम मैंने कहा था, कैप्रोलैक्टम ये कंपाउंड होता है, डबल बॉन्ड ओ यहाँ NH, दिस इज कैप्रोलैक्टम, ये टोटल 7 कार्बन की चेन है ये। तो इस कैप्रोलैक्टम को जब वाटर डालते हैं, इसमें क्या होता है, यहाँ पर ब्रेकिंग होता है, एक साइड बनेगा COH, फिर 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, और फिर NH2, इसको कहते हैं ओमेगा एमिनो कैपोरिक एसिड, यही पॉलीमराइज होता है और यहाँ पर इसमें निकल जाता है, इधर से OH यहाँ से H, तो ये पार्ट बार बार रिपीट होता जाएगा, CH2 होल 5 NH, यही रिपीट होता जाएगा बार बार, इसी को कहते हैं नायलॉन 6, यूज सेम एज दैट ऑफ नायलॉन 66। और लास्ट में कराया था मैंने फॉर्मल्डिहाइड रिजन। फॉर्मल्डिहाइड रिजन में हमने 2 चीजें की थी, एक बताया था मैंने फॉर्मल्डिहाइड रिजन में, एक किया था बेकालाइट। बेकालाइट में क्या बताया था मैंने, मोनोमर्स, मोनोमर यहाँ पर बताया था, एक फिनॉल एक फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड तो है ही है, दूसरा फिनॉल, तभी इसको नाम है फॉर्मल्डिहाइड फिनॉल रिजन भी। तो ये दोनों जब कंबाइन करते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, अल्टीमेटली एक चेन बनती है, चलो दिखा भी सकते हैं चेन लाइक दिस। मैंने कहा था आप चेन बनाइए, बेंजीन रिंग्स बनाइए, 2 बार बनाइए, नीचे भी ऊपर भी, और इनके बीच में लिंकेज भी डालिए लाइक दिस। बेंजीन रिंग की चेन बनाइए 2-4, दूसरी लेयर लाइक दिस, इसमें ऊपर से OH रहेगा, इसमें नीचे से OH रहेगा लाइक दिस, OH एंड OH। इसको ऊपर से कनेक्शन है लाइक दिस CH2, इसको नीचे से कनेक्शन है CH2 का, वेरी इंपॉर्टेंट, बीच में CH2 लिंकेज है, जरूरी नहीं कि सब में है, लेकिन मैंने सब में दिखा दी, और यही होल है, दिस इज बेकालाइट, दिस है हीट प्रूफ प्लास्टिक, इसको हम फॉर्मिका टेबल्स बनाते हैं, टेबल टॉप्स बनाते हैं, फाउंटेन पेन्स बना सकते हैं, इवन ग्लूज व्लूज में भी डाल सकते हैं। सेकंड बताया था, फिर लास्ट में मैंने फॉर्मल्डिहाइड मेलामीन रेजिन, और मैंने कहा था फॉर्मल्डिहाइड मेलामीन रेजिन जो है ये अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने के काम आ जाता है, टिपिकल यूज, इसको आपको याद रखना है। तो एक तो फॉर्मल्डिहाइड है ही है, दूसरा मेलामीन है, मेलामीन क्या है इसमें, ये आपको याद रखना है। अब अगर चाहे तो ऐसे बना के बीच में N3, यहाँ N डालो, यहाँ N डालो, और यहाँ N डालो, राइट, डबल बॉन्ड डाउन, जहां पर N नहीं है तो वहां NH2 डाल दो, दिस इज मेलामीन, ठीक है ना। जब ये CH2OH इसके साथ कंबाइन करता है, इसका H निकलता है बाहर, ये बनता है NH, फिर ये CH2OH, तो NHCH2OH आ जाता है एंड में, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं लाइक दिस, यहाँ पर सपोज यहाँ पर बनेगा NHCH2OH, यहाँ पर भी NHCH2OH, यही है मेलामीन, और यही NHCH2OH दूसरे मॉलिक्यूल के साथ
NHCH2OH, बीच में है अल्टरनेट डबल बॉन्ड और बीच में है 3 जगहों पर N, ये N है बीच में। दिस इज, यहाँ पर जब क्या होता है ये H निकलता है और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, इसलिए इस H को डैश डैश डाल के रख लो और होल N लिख लो, यही है मेलामीन जो यूज होता है for making unbreakable crockery. This was all about this chapter revision.